हेलो एवरीवन। हम लोग रजिस्टर सिंपल सर्किट में रजिस्टर का कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं कि जो रजिस्टर कब हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, कब हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। लेट थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are given. If first case will be find out for the series combination, then first case is the series combination of resistor, combination of resistors, there are two cases. First case is the series combination, and second case is the parallel combination. First case is the series combination, second case is the parallel combination. Let three resistance are given. First resistance is the R1, R2, R3. 1 minute. Three resistance R1, R2 and R3 are given. First resistance is the R1 according to figure. Let us suppose the figure of combination for series combination. What is the series combination? There are the three resistance. First is the R1, second resistance is the R2, and third resistance is the R3. Let us suppose three resistance. First is the R1, R2 and R3, and across these three resistance we attach the battery, whose potential difference of battery which will be equals to V. Smaller plate is the negative plate and bigger plate is the positive plate. So charge and current will be flow from negative plate to positive plate. So here resistor is given, so current is flowing through this battery. So direction of a current will be the negative plate to positive plate. Direction of a current which will be is this direction of a current. For series combination there are the one branch, so the distribution of a current cannot be possible. Here there is the one path, so current in R1 resistance equals to I, current in R2 resistance equals to I, current in R3 resistance equals to I, current in R3 resistance equal to I. So current in each resistance which will be equals to I. So this current is flow is this situation. For series combination, the current must be same. If there are two resistors, three resistors, four resistors, in that resistors the current will be same, then that resistance must be added according to a series combination. In these resistors current will be same, but potential difference will be a potential difference across R1, potential difference across R2, potential difference across R3 will be different. There are the two ways to say the resistors are in series. First way, the current in resistors will be same, then that three resistors are in series. If potential difference between these three resistance, if potential difference is these three resistance is equals to V1, V2, V3. If resistance will be different, then potential difference will be the different. Okay, but for current we can say, केवल हम लोग करंट के लिए बोल सकते हैं कि यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पक्का है हमारा करंट सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कब बोल पाएंगे? जब हमारे रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा? अलग अलग होगा।
ठीक है, रेजिस्टेंस सेम होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, सेम होगा। जैसे हम लोग V इक्वल टू आई आर की बात करते हैं, I इंटू आर वन है, I इंटू आर टू है, I इंटू कितना आर थ्री है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग R1 के अबाउट चेक करेंगे तो I इंटू आर वन होगा। सेकेंड आपका रजिस्टर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे I इंटू आर टू होगा। थर्ड के अकॉर्डिंग चेक करेंगे I इंटू क्या होगा, आर थ्री होगा। इम्प्लाइज दैट हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है जब रजिस्टर्स हम लोग अलग अलग मान रहे हैं, ठीक है। करंट क्या होगी, हमेशा आपकी सेम होगी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अच्छा, तो इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान रहे हैं, पहले के अकॉर्डिंग V1 मान रहे हैं, सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या मान रहे हैं हम लोग, V2 मान रहे हैं, और थर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या मान रहे हैं, V3 मान रहे हैं, ठीक है। अब इस सर्किट की जगह पे हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। मतलब कि देखो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V वोल्ट है, ठीक है। इन तीनों रजिस्टर की जगह पे हम लोग एक रजिस्टर बना लेते हैं। एक रजिस्टर को हम लोग बोल देते हैं आर नेट बोल देते हैं या आर सीरीज बोल देते हैं। इन तीन रजिस्टर की जगह पे हम लोग एक रजिस्टर राइट करते हैं। राइट द इन प्लेस ऑफ अ थ्री रजिस्टर्स इक्वल्स टू वन रजिस्टर्स विच रेजिस्टेंस इक्वल टू आर इक्विवेलेंट या आर नेट implies that we can construct the figure for this condition which will be equals to, let us suppose this is the R net, this is the R net, and this is the battery, this is the battery whose potential difference equals to V. बैटरी इज द सेम, बैटरी हमारी क्या है, वही है। इन तीन रजिस्टर की जगह पे हमने एक रजिस्टर बनाया जिसका कि रेजिस्टेंस हमने क्या माना, आर नेट माना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, हमारा देखो इनका V1, इनका V2, इनका V3, इन सब का V एडिशन करने पे हमेशा क्या किसके बराबर आता है, आपका V के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है आपका, V1 प्लस V2 और प्लस कितना V3 होगा। V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा हमारा V3 होगा, ठीक है। आप चेक करनी हो तो चेक कर सकते हो, कैसे चेक करेंगे देख लो। आप KVL अप्लाई करोगे, KVL मालूम है ना क्या होता है, KVL का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे तो KVL के कॉन्सेप्ट से ही हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ये हम लोग राइट करते हैं। KVL के कॉन्सेप्ट से हम लोग राइट करते हैं कैसे, निगेटिव पॉजिटिव हमारा प्लस V हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा माइनस आई इंटू आर वन, इसको V1 एज्यूम किया, यहाँ से माइनस आई इंटू आर टू, क्योंकि रजिस्टर है तो पोटेंशियल का क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। यहाँ पे क्या होगा माइनस आई इंटू कितना आर थ्री है, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल का क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, तो कितना हो जाएगा माइनस आई इंटू आर थ्री होगा, ठीक है। अब ये कहाँ पे बराबर आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जीरो पे आ जाता है। निगेटिव पॉजिटिव हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जीरो पे आते हैं, और बाकी ये माइनस आई आर वन, माइनस आई आर टू, माइनस आई आर थ्री को राइट शिफ्ट करते हैं, ये नंबर आता है, ठीक है। तो मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं इस पर, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करते हैं, V1 इक्वल टू क्या होगा, IR1 होगा, लिखते हैं हम लोग, ठीक है। V1 इक्वल टू क्या होगा, IR1 होगा, राइट करते हैं। V1 इक्वल टू कितना, I इंटू R1 होगा, ठीक है। V2 इक्वल टू I इंटू कितना होगा, R2 होगा। V3 इक्वल टू कितना होगा, I इंटू क्या होगा, R3 होगा। और V इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग यदि राइट करते हैं, एक मिनट, हाँ, V1, V2, V3 इसके अबाउट, रजिस्टर के अबाउट, और यहाँ से इसके लिए लिखते हैं तो V इक्वल टू कितना होगा, इसमें करंट क्या होगी, I होगी, करंट क्या होगी हमारी, I होगी। करंट देखो सेम है, बैटरी हमारी सेम है, निगेटिव पॉजिटिव बैटरी सेम है तो करंट क्या होगी हमारी, सेम होगी, ठीक है। इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे एक रेजिस्टेंस एज्यूम किया है तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, I इंटू क्या होगा, R नेट होगा, ठीक है। और सारी वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक। अब ये वैल्यू रखने पे हमारे पास वैल्यू क्या आती है, I इंटू क्या होगा, R नेट होगा, इक्वल टू I इंटू कितना होगा, R1 होगा, प्लस I इंटू क्या होगा, R2 होगा, प्लस I इंटू कितना होगा हमारे पास, R3 होगा। I हमारा हट जाएगा हर एक से, I को हटा देंगे, देन R नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस कितना होगा, R3 होगा, ठीक है। ये हमारे क्या है, आपके सीरीज कॉम्बिनेशन है। यदि कोई भी तीन रजिस्टर हैं जो कि सीरीज में एडेड हैं तो उसका जो आर इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर है। चार रजिस्टेंस हो गए प्लस R4 हो जाएगा,
10 रजिस्टर होंगे अप टू R10 होगा, n रजिस्टर होंगे अप टू Rn होगा, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो आरनेट है वो R1 R2 R3 जितनी भी रजिस्टर्स हमारे कॉम्बिनेशन वाले, जो आरनेट है तो आरनेट सबसे बड़ा रजिस्टर होगा। आरनेट हमेशा आपका R1 R2 R3 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमेशा याद रखना। जो आरनेट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, जो आरनेट है या RS बोल लेते हैं, S का मतलब सीरीज बोल लेते हैं, इज ऑलवेज मैक्सिमम कंपेयर टू R1 R2 R3 अप टू Rn। इन सारे रजिस्टर्स में RS या आरनेट हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा आपका बड़ा होगा, ठीक है। हाँ, R1 R2 R3 अप टू Rn जो वैल्यू है ये कुछ भी हो सकती हैं आपकी, किसी से बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। R1 R2 से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। R1 R10 से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। R3 R5 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमेशा भी याद रखो करंट क्या है, सेम है, तो वो क्या होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की, हम लोग बात करते हैं। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिगर जैसे हमारा बनता है कुछ ऐसे, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिगर हम लोग बनाते हैं। R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है और R3 रजिस्टर्स है। ये सारे रजिस्टर्स हमारे क्या हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको दिखने से ही लग रहा है ये किस में है, बोलो, पैरेलल हमारे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, ठीक है। दिखने से लग रहे हैं पैरेलल है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अच्छा, एक बैटरी लगी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हमारा V है। छोटी प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे A पॉइंट है, मान लो ये P पॉइंट है, A पॉइंट हमारा जंक्शन है। तो KCL के अकॉर्डिंग, किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट आपकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली वाली ब्रांच में हम लोग मान लेते हैं करंट क्या है, I1 है। दूसरी ब्रांच में करंट क्या मानते हैं, I2 है। तीसरी ब्रांच में करंट क्या मानते हैं हम लोग, I3 है, ठीक है। तो यहाँ पे I1 एज्यूम किया, ये I2 एज्यूम किया, ये हमने क्या एज्यूम किया, I3 एज्यूम किया, ठीक है। I1 I2 और I3 हमने इस सर्किट्स में हमने करंट का एजम्पशन किया। तो आप हमेशा याद रखना, यदि रेजिस्टेंस, ठीक है, हमारे क्या है, पैरेलल हैं, तो हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, हमने बोल दिया ये किसमें, आपके पैरेलल में है, तो पैरेलल में तभी हो पाएंगे जब हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देखो R1 रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आपका मान लो V0 है, R2 रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हमारा V0 है, R3 रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V0 है, ठीक है। तो तीनों रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस यदि सेम है तभी हम लोग बोल पाएंगे वो रजिस्टर किसमें है, हमारे पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं VA डिफरेंस VB इक्वल टू V0 है, ठीक है। R1 की बात करो या R2 की बात करो या R3 की बात करो, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, आपका सेम है, ठीक है। तो वही हमारा किसके बराबर है, V के बराबर है, क्योंकि ये हमारा क्या है, आपका A पॉइंट है, ये वायर है, कोई भी इंडक्टर, कोई भी कैपेसिटर, कोई भी आपका इस पे आपका रजिस्टर नहीं है, तो इसका यहाँ पे पोटेंशियल ना ही गेन होगा ना ही आपका ड्रॉप होगा, ठीक है। तो हमारा वायर है,
तो आपका ए पॉइंट का पोटेंशियल जैसे कि मान लो 10 वोल्ट है, तो वही 10 वोल्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इस प्लेट की बड़ी प्लेट पे होगा। ये मान लो कितना 5 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, 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 ठीक है। 10 डिफरेंस 5 कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो वही R1 का आपका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होगा, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होगा, I3 का पोटेंशियल डिफरेंस आपका 5 वोल्ट होगा। मतलब कि यदि हमारे रजिस्टर पैरेलल में है तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कि V के बराबर है। तो यदि हम लोग इसके लिए बोलते हैं, अब देखो इस पे कभी भी रजिस्टर या कैपेसिटर के लिए भी यही बोल सकते हैं, यदि कैपेसिटर में उनका पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का यदि सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर्स का सेम है C1 C2 C3, तो वो कैपेसिटर किस में आपके बिहेव करेगा, एज ए पैरेलल बिहेव करेगा। यदि कैपेसिटर में, हम लोग करंट की बात नहीं करेंगे, वहाँ पे चार्ज की बात करेंगे। कैपेसिटर में यदि सीरीज में है तो सीरीज में क्या होगा, हमारा चार्ज सेम होगा, तो वो किस में होगा, हमारे सीरीज कैपेसिटर में रिप्रेजेंट आपका करेगा। यहाँ पे बोल रहा है R1 R2 आपका R3 है। जब रजिस्टर होगा तो करंट की बात करेंगे, कैपेसिटर होगा तो चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हम लोग KCL का यूज करते हैं, किरचॉफ करंट लॉ की यूज करते हैं। I इक्वल टू कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, ठीक है। राइट करते हैं हम लोग, करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 और प्लस क्या होगा हमारे पास I3 होगा, ठीक है। अच्छा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब एक काम करते हैं, इन तीन रजिस्टर की जगह पे एक हम लोग नेट रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, R इक्विवेलेंट हम लोग मानते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा R इक्विवेलेंट है, R नेट है, ठीक है। इन तीन रजिस्टर्स की जगह पे हम लोग क्या मानते हैं, R नेट है। यहाँ की हम लोग बात करते हैं, अब ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है, ठीक है। यहाँ पे करंट हमारी वही आपकी सेम जाएगी, I है, ये करंट हमारी क्या होगी, हमारी सेम जाएगी, हमारा क्या होगा आपका I होगा, ये करंट क्या होगा हमारा I होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे याद करते हैं आपका V इक्वल टू कितना होगा, V इक्वल टू हमारा क्या होगा, I1 इंटू कितना होगा, R1 होगा, I1 इंटू क्या होगा, R1 होगा। V इक्वल टू कितना होगा, हमारा I2 इंटू क्या होगा, R2 होगा। V इक्वल टू कितना होगा I3 इंटू क्या होगा, R3 होगा। V इक्वल टू क्या होगा आपका I इंटू कितना होगा, R नेट होगा। हमें वैल्यू किसकी किसकी चाहिए, हमें करंट की वैल्यू चाहिए, इसमें पुट करना है क्योंकि प्रूफ करना है, हमें करंट की वैल्यू चाहिए। देन I1 इक्वल्स टू V अपान क्या होगा, R1 होगा, एंड I2 इक्वल्स टू क्या होगा, V अपान हमारा क्या होगा, R2 होगा, ठीक है। और इसी तरह से I3 की बात करेंगे, I3 इक्वल टू क्या होगा, V अपान क्या होगा, हमारा R3 होगा, एंड हमारा I इक्वल टू क्या होगा, V अपान क्या होगा, R नेट होगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। I इक्वल टू V अपान क्या होगा, R नेट होगा, इक्वल टू I1 कितना होगा, V बाई R1 होगा, प्लस I2 कितना होगा, V बाई क्या होगा, R2 होगा, प्लस I3 कितना होगा, V बाई क्या होगा, R3 होगा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, V को कैंसिल करते हैं, देन 1 अपान R नेट इक्वल्स टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान कितना R3 हमारा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, R नेट हो गया। 1 अपान R1 प्लस R नेट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान कितना हो गया, हमारा R3 हो गया, ठीक है। तो इन तीन रजिस्टर की जगह पे हमने एक रजिस्टेंस राइट किया। अब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, हमारे पास यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ हम लोग राइट कर लेंगे, ठीक है। आपका इस पे इफ एनी लेट 3 रजिस्टर्स आर गिवन R1 R2 and R3 and battery will be connected, ठीक है, and that resistors connected are in parallel, then battery will be connected whose potential difference equals to V. Then current is flowing from this battery which will be equals to I. Let current I is flow from this battery. Then at a point according to the KCL
according to the KCL, ठीक है, according to the KCL the current I1 is flowing in R1 resistance, I2 is flowing in R2 resistance, and R3 is flowing in and I3 is flowing in R3 resistance. Okay, so in this circuit the current is flowing I1, I2, I3, I1, I2 and R3, R1, R2, R3. Okay, imply that we can say we use the incoming current equal to outgoing current, or we can say KCL, Kirchhoff current law, I equal to I1 plus I2 plus I3. ठीक है, we know that V equal to I1 R1, then I1 equal to V upon R1, V equal to I2 R2, then I2 equal to V upon R2, V equal to I3 R3, then I3 equal to V upon R3. Similarly we can say implies that 1 upon R net equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ठीक है, अब आपसे एक चीज ये पूछ सकता है, जो R net है वो R1, R2, R3 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्या होगा इस पे? ठीक है, आप यदि सीरीज में है तो R net हमेशा क्या होगा, उन जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में हैं उससे हमेशा बड़ा होगा, लेकिन इसके उल्टा पैरेलल में होता है। यदि हमारा क्या है बोलो, पैरेलल में है, तो हमेशा जो R net है वो हमेशा छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। किससे? R1 से, R2 से, R3 से, जितने भी रेजिस्टर्स गिवन है उन सबसे छोटा हमारा क्या होगा, R net होगा, हमेशा छोटा क्या होगा, R net होगा। ठीक है, ओके।